हेलो गाइस। तो हम पढ़ते हैं आज कंप्यूटर का चैप्टर 4 एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग। इंट्रोडक्शन। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स टू सर्व बिलियंस ऑफ यूज़र वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है और बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। It has increased connectivities and communication among people by instant delivery of messages. It has enabled people to learn and gain knowledge about any topic of their desire by browsing internet or by online courses. It helps us in performing various tasks such as online shopping, booking tickets, paying bills, baking and much more. It gives a big platform for people to market their products and run their business. It entertains us in our leisure time and keeps us busy. It provides online storage facilities to users. मतलब कि आजकल हम ये एडवांटेजेस हैं, आगे डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। तो अभी मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं अभी, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं और हम इससे बहुत सारे टास्क भी कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और हम खाली समय में हमारा इंटरटेनमेंट का माध्यम भी है इंटरनेट, जिससे हम बिज़ी रहते हैं और ये हमारे ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। देन नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ प्लेस टू ऑफर so much to its user and hence become the bigger factor in distracting one from her desk. People actively using the internet can face cases of internet buying and bullying and crimes. Hacking of personal profile and account has become another cause of concern. Safety of personal data and information also worries the users. Attack of viruses is also a threat of using internet. Over-reliance on internet activities can make the user lethargic and irresponsible. तो अब जो डिसएडवांटेजेस हैं वो करते हैं। तो जो पीपल जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको बुलिंग और क्राइम्स से मतलब डर होता है कि कहीं उनका वो शिकार ना बन जाए बुलिंग का। अभी हम बुलिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे क्राइम्स आएंगे। हैकिंग भी एक पर्सनल वो हो चुका है कि अपने अकाउंट को बचाने की चिंता रहती है उनको, और वायरसेस का अटैक हो जाए इसकी भी इनको चिंता रहती है इंटरनेट यूजर्स को। नेक्स्ट, एथिक्स। विद द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, द वर्ल्ड इज witnessing a vast change. We can use information as a powerful tool as technologies give us wonderful ideas, powers, invention, discoveries. We also come across many ethical dilemmas while enjoying the fruit of information technology. We should ensure that the information is not missed or technology is not used to the disadvantage of the society and people at large. Ethics in general is a set of moral principles that govern the behavior of a group or an individual. Computer ethics are acceptable moral standards that regulate the use of computer and the internet. Some ethical values related to the computer and its use are given. तो ethics के वो रूल्स रिलेटेड वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड वैल्यूज़ एथिकल। Respect other people. View and be considerate while posting anything online. Do not engage in spreading false information over the internet. Do not share private information or images of other people without their consent. Do not try to steal sensitive information or data. Do not accept or forward email from unknown source. Always respect the copyright laws of the software and the downloaded content from the internet. Do not use or access other people's resources or system with their consent. किसी की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डाटा चुराने की। और
गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं फैलानी चाहिए इंटरनेट पे, और अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर इमेजेस किसी और आदमी की नहीं भेज सकते किसी को भी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस। Some of the unethical practices that are prevalent in the society related to the use of internet are explained. अब इसमें कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस के एग्जाम्पल आएंगे। तो सबसे पहले है plagiarism. Nowadays, it has become a common practice for people to create content and upload it on the internet. Some of this content is made available for the public by the creator, so the content is enriching and informative for the public. It has been observed that some people might copy the same content and present it as their own. It could be done either intentionally or by accident. This act is known as plagiarism. अब इस plagiarism में क्या होता है, जैसे हम YouTube पे कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारी वीडियो सेम टू सेम देख के या थोड़ा सा कॉपी करके कोई और सेम कंटेंट डाल देता है, तो ये होता है प्लागियरिज्म। ये गलती से भी हो जाता है कई बार, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई तो किसी ने मेरी देख के वापस से वीडियो बना ली ऐसे, या फिर किसी और की वीडियो देख के मैंने वीडियो बना ली। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। Bullying is using aggressive behavior to hurt or frighten someone over a period of time and often forcing them to do something that they do not want to do. अब बुलिंग में क्या होता है, उनका बिहेवियर हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको डराने की या उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं और उन चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। इट इन्वॉल्व्स अ रियल और परसीव्ड पावर इम्बैलेंस. Bullying can have negative effect on those who are bullied and also on those who bully. अब बुलिंग का नेगेटिव इफेक्ट दोनों पे पड़ता है, जो बुली करता है दूसरे को और जो बुलिड होता है जिसको ब्लैकमेल किया जाता है। अब एक मेन लाइन है, साइबर बुलिंग इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा। साइबर बुलिंग का फॉर्म है जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये साइबर बुलिंग की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं हैकिंग। हैकिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर और नेटवर्क रिसोर्सेज। हैकिंग क्या होता है, किसी को भी किसी की भी अनऑथराइज एक्सेस लेना कंप्यूटर से या फिर किसी भी नेटवर्क रिसोर्सेज से, कंप्यूटर या फिर किसी भी नेटवर्क रिसोर्सेज से। अ हैकर इज़ अ पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर और नेटवर्क विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग और हार्मिंग द डाटा। हैकर वो पर्सन होता है जो बिना नेटवर्क को हार्म किए या डिस्ट्रॉय किए कंप्यूटर को हैक करता है। वाइल अ क्रैकर इज़ द पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मैलिशियस डैमेज। क्रैकर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर को तो हैक करता ही है, उसके साथ साथ उसके डेटा को भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाता है उससे। नेक्स्ट पेज पे मेजर्स टू अवॉइड हैकिंग। The following measures must be taken to avoid hacking. Don't share your personal information with unknown or suspicious sources. Don't create a password based on your personal information like last name, telephone number, etc. Don't share your password with anyone even though she is your close friend. Don't access and download material from illegitimate sites. Don't try to open and download unknown software and email attached to any mail contain viruses. Use strong antivirus software for your computer. Don't get tempted towards unknown advertisement. Don't share sensitive information such as card detail, OTP, CVV number, etc. with anyone. अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, किसी भी जिसको हम नहीं जानते। और हमें पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे हमने लास्ट नेम से बताने या फिर टेलीफोन नंबर से हमने पासवर्ड बना लिया, तो ऐसे पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। और किसी को भी अपने पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो।
और कभी भी डाउनलोड ओपन नहीं करना चाहिए डाउनलोड अननोन सॉफ्टवेयर को और जो ईमेल अटैच है उससे, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है। और हमें स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट, फिशिंग। इन द साइबर वर्ल्ड, फिशिंग इज अ फॉर्म of illegal act where fraudulently sensitive information is acquired, such as password, debit or credit card details by a person, often posing a trustworthy or a business communication. अब फिशिंग क्या है? एक इलीगल एक्ट है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रॉड से, जैसे कि पासवर्ड या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल उस पर्सन से रिलेटेड। मतलब वो अपने आप को ट्रस्ट वर्दी बताते हैं या फिर कोई बिजनेस कम्युनिकेशन समझ के वो ये डिटेल दे देते हैं, लेकिन ये फिशिंग है और ये नया काइंड का साइबर क्राइम है। और नेक्स्ट है स्पैम। समटाइम्स द टाइटल्स ऑफ दिस मैसेजेस आर वेरी fascinated and compel the receiver to read them. Most of the spam contain commercial advertising, unconventional products or get rich quick scheme. Spam not only waste the valuable time of the user but also occupy memory space of the system. These also carry viruses and corrupt the system. अब जो स्पैम होते हैं, जो ईमेल्स आती हैं, जो हमारे इसमें एडवर्टाइजमेंट आती हैं या फिर अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो एक हैकिंग का मतलब क्राइम वर्ड का ही माध्यम है स्पैम भी, मतलब जिसमें जो ईमेल है, जो अनवांटेड ईमेल है वो स्पैम में चली जाती है, जिससे हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पासवर्ड से रिलेटेड वो बच जाती हैं। और नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर पायरेसी। To run some software on a computer, the user needs to purchase and it become it licensed user. The user has the right to use it on single computer. However, it is illegal to make copies of it and run it on other computers. Software piracy is an act of making and distributing copies of software without buying and required licensing और कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी एक्ट है जिसमें हम कॉपीज़ बना देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कॉपी किसी भी सॉफ्टवेयर की बिना खरीदे, जो रिक्वायर्ड लाइसेंस हमें होता है या फिर कॉपीराइट खरीदे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ownership of ideas. It refers to work created by various artists, scholars, inventors, etc. using their skill and mental ability. Intellectual property rights can be broadly classified into the following. First, patents. The patent right is given to the programmer for an invention of a particular software. Patent laws can be used to restrict the freedom of copying, using, distributing and modifying published information. पेटेंट में क्या होता है? हमें फ्रीडम मिलता है कि हम कॉपी कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को। कॉपीराइट प्रोहिबिट्स द यूजर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर program for making copies of it without the permission of the person company concerned which issues the license for the program. जो हम कॉपीराइट में क्या होता है? जो हम प्रोग्राम की कॉपी बनाते हैं, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी बनाई हमने, तो हम उसकी बिना परमिशन के बनाते हैं, जैसे किसी पर्सन की बिना परमिशन या फिर जो कंपनी है जो लाइसेंस इशू कराती है उस प्रोग्राम के लिए, उसकी बिना परमिशन से हम कॉपीराइट से कॉपी कर सकते हैं। Trademark is an identity to preserve the software. A trademark sometimes becomes such a success that it is actually worth more than a product. It becomes the business of selling of an image and identify rather than a product. Trademark जैसे कि हमने किसी चीज़ को, मतलब जैसे बुक्स में भी लगा होता है किसी बार, तो ट्रेडमार्क होता है। और जैसे कि कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत वर्थली बिक जाते हैं, तो हमें इस ट्रेडमार्क से फ़ायदा होता है। सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट. We should ensure the following safety measures while using the computer and the internet. Avoid posting your personal information on sites where it can be accessed easily by others. Add only those people on social networking sites who are known to you. Protect and secure your social media and other accounts. There are various features available that allow
you to secure your account. Always respond to emails and messages of a familiar source. Talk to your parents if you came across any inappropriate content. Seek parental assistance for setting up a strong password, sharing personal information, password, etc. with other people, posting appropriate photos and videos online, downloading any new software, surfing safe and appropriate websites on the internet. Next step, protection using firewall. Firewall is defined as a network security device that allows or rejects network access between an untrusted zone such as the internet and a trusted zone, a private. जो हमारा अनट्रस्टेड जोन होता है जैसे कि इंटरनेट, वहाँ पे हमारा फायरवॉल जो होता है वो एक तरह के एंटीवायरस टाइप में काम करता है, मतलब वो जाने नहीं देता है, फायरवॉल जो है वो जाने नहीं देता है, अनट्रस्टेड जोन को हमारे कंप्यूटर में नहीं जाने देता है, और जो ट्रस्टेड जोन है वो आसानी से प्राइवेट नेटवर्क को आसानी से चला जाता है. नेक्स्ट, डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट आर द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द इंटरनेट. डिजिटल फुटप्रिंट इंफॉर्मेशन है जो भी हम यूज़र है वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल इंटरनेट पे. अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू. और फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी जल्दी यूट्यूब पे डाल देंगे.